تو دوستو آج کے سبق میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں کھڑی بولی کے اوصاف کے بارے میں۔ تو کل کے سبق میں ہم لوگوں نے بات کیا تھا تاریخ زبان اردو کے متعلق ہم لوگوں نے کل بات کر لیا ہے۔ اگر آپ نے وہ والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو جا کے ایک بار دیکھ لیجئے، اس کے بعد یہ والا دیکھیے۔ اور BPSC TRE 4 کے لیے یہ اردو کی کلاسز ہیں۔ اگر آپ 6 to 8 کے لیے یا 9, 10 یا 11, 12 کی تیاری کر رہے ہیں تو مستقل طور پہ آپ کو یہاں پہ نوٹس اور ویڈیوز فراہم کیے جائیں گے، جس سے آپ کی جو تیاری ہے وہ آسان سے آسان ہو سکے۔ تو چلیے آج کے سبق میں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، کھڑی بولی کے اوصاف کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو کھڑی بولی کے جو اوصاف ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ کھڑی بولی آئی کہاں سے، کس نے کہا۔ تو ڈاکٹر گیان چند نے کھڑی بولی کو اردو کا اصل قرار دیا ہے۔ کس نے قرار دیا ہے؟ ڈاکٹر گیان چند نے کھڑی بولی کو اردو کا اصل قرار دیا، یعنی اردو کی اگر پیدائش ہے تو وہ کھڑی بولی سے ہے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیے کہ اردو کی بنیاد بلا شبہ کھڑی بولی پر قائم ہے، یعنی اردو کی جو بنیاد ہے وہ بلا شبہ کس پر قائم ہے؟ کھڑی بولی پر قائم ہے۔ کھڑی بولی علاقائی اعتبار سے مغربی یوپی کی بولی ہے۔ تو ایک پوائنٹ آپ یہاں یاد رکھیں کہ گیان چند نے کھڑی بولی کو اردو کا اصل قرار دیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھیے۔ تیسرا پوائنٹ آپ دیکھیے کہ مغربی یوپی میں بولی جانے والی زبان کو کھڑی بولی کہتے ہیں۔ تو جو زبان مغربی یوپی میں بولی جاتی تھی اسی کو ہم لوگ کھڑی بولی کہتے ہیں۔ اب مغربی یوپی یعنی وہ جو دہلی کے قریب کا جو علاقہ ہے اسے ہم مغربی یوپی کہتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ دیکھیے کہ اردو بشمول دہلی انہی علاقوں میں 12ویں صدی کے اواخر میں ماریز وجود میں آئی۔ کب وجود میں آئی؟ جب دہلی میں جو دہلی کے آس پاس بشمول دہلی یعنی دہلی کے آس پاس کا جو علاقہ تھا اور مغربی یوپی، ان تمام علاقوں میں 12ویں صدی کے آخر میں ماریز وجود میں آئی، اور یہ پنپی کہاں سے؟ ایک کھڑی بولی سے ہی پیدا ہوئی۔ اب دیکھیے اس والے پوائنٹ کو آپ دیکھیے، یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بشمول دہلی انہی علاقوں میں 12ویں صدی کے اواخر میں ماریز وجود میں آئی۔ کون؟ اردو۔ کھڑی بولی کے نکھار کا یہ زمانہ اردو کا ابتدائی زمانہ تھا۔ کون سا زمانہ؟ جب 12ویں صدی کے آخر کا جو زمانہ ہے وہ کھڑی بولی کے نکھار کا یہ زمانہ اردو کا ابتدائی زمانہ تھا، یعنی اسی وقت اردو زبان پنپنے لگی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے کہ کھڑی بولی کا اردو کے ساتھ ماں بیٹی کا رشتہ ہے۔ کون سا؟ اگر کوشچن بنتا ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ کس سے ہے کھڑی بولی کا، اردو کا مطلب اردو کی ماں کسے کہہ سکتے ہیں، تو وہ کھڑی بولی کو ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ کھڑی بولی کا رشتہ اردو کے ساتھ ماں بیٹی جیسا ہے۔ اور کھڑی بولی سور شینی اپبھرنش سے پیدا ہوئی ہے، یعنی یہ اردو جو پیدا ہوئی ہے وہ کھڑی بولی سے، لیکن کھڑی بولی کس سے پیدا ہوئی ہے؟ وہ پیدا ہوئی ہے شور سینی اور اپبھرنش سے۔ اور آپ کو معنی معلوم ہوگا، اپبھرنش کا معنی ہوتا ہے بگڑی زبان۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ بگڑی زبان کو ہم اپبھرنش کہتے ہیں۔ اور پراکرت کو بولیں گے فطری زبان۔ پراکرت کو کیا بولیں گے؟ فطری زبان۔ یاد رکھیے ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اپبھرنش کے کیا معنی ہیں۔ تو بگڑی زبان اور پراکرت کے فطری زبان۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ کھڑی بولی نے جو جنم لیا ہے وہ شور سینی اور اپبھرنش سے مل کر کے جنم لیا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھتے ہیں کہ کھڑی بولی کہتے کیوں؟ کھڑی بولی یعنی وہ لب و لہجہ کہ جس میں اتار چڑھاؤ نہ ہو، ایک ایسا جیسے یہ میرا لڑکا ہے، یہ میرا لڑکا ہے، اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا۔ اور زیادہ تر کھڑا مطلب استعمال کرتے ہیں یہ لوگ، کوئی بھی میرا، تیرا، لڑکا، یہ سارے جو ہے کھڑی بولی کے اوصاف میں سے ہیں، الف کا استعمال کرنا۔ آگے دیکھتے ہیں، اور اسی رشتے کی وجہ سے، کون سا رشتے کی وجہ سے؟ ماں بیٹی کے رشتے کی وجہ سے اردو ہند آریائی زبان بھی قرار پاتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اردو جو جنم لی ہے وہ اگر آخر میں ملایا جائے، جیسے ہندوستان میں جو زبانیں آئی، زبانوں کی جو ہے 8 قسمیں ہیں، سامی ہے، منڈا وغیرہ وغیرہ ہے، تو ہندوستانی جو زبان ہے وہ پنپی ہے۔ اگر ساؤتھ کی طرف دیکھا جائے تو دڑاویری سے ہے،
अगर हिंदी और उर्दू को देखा जाए तो वो कदीम आर्याई ज़बान, आर्या लोग जब हिंदुस्तान आए थे तो जो ज़बान लेके आए थे वो ज़बान कहलाई थी। तो उसी से कदीम हिंद आर्याई जो है उसको 3 हिस्से में बांट दिया गया, कदीम हिंद आर्याई, जदीद हिंद आर्याई, वस्ता हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। तो हिंद आर्याई से पनपी थी। वस्ता हिंद आर्याई में आपको अपभ्रंश और सौरसेनी मिल जाएगा, और इसी से खड़ी बोली निकली। जब इसी से खड़ी बोली निकली तो गोया वो हिंद आर्याई ज़बान भी करार पाएगी। अगर आपको ये सवाल पूछा जाए कि हिंद आर्याई ज़बान में उर्दू ज़बान शामिल है या नहीं, तो बिल्कुल शामिल है। क्यों शामिल है? क्योंकि हिंद आर्याई ज़बान 3 हिस्सों में मुनक़सिम हुई, कदीम हिंद आर्याई, उस्ता हिंद आर्याई और जदीद हिंद आर्याई। उस्ता हिंद आर्याई में से है अपभ्रंश और शोरसेनी, और अपभ्रंश जो है वो अपभ्रंश से निकली है खड़ी बोली, तो यकीनन उर्दू भी हिंद आर्याई ज़बान में शामिल है। अब आगे देखते हैं। खड़ी बोली के इस नए निखरे हुए रूप को हिंदी कहा गया। खड़ी बोली से जो एक नया रूप निकल के सामने आया उस ज़बान को क्या बोला गया? हिंदी बोला गया। फिर उसके बाद उर्दू को पहले हिंदी या हिंदवी बोला गया, उसी ज़बान को पहले हिंदी उसके बाद हिंदवी बोला गया और रेख्ता कहा गया। फिर इसको उर्दू का नाम फिर रेख्ता भी कहलाया। आज आप लोग देखते भी होंगे उर्दू एक रेख्ता फाउंडेशन भी है जो दिल्ली में है, उसी की बनिस्बत उसका नाम रखा गया है, रेख्ता कहा गया। हिंदी, उर्दू का नाम हिंदी भी है पुराना, और हिंदवी भी है और रेख्ता भी है, याद रखिएगा। और उसी को बाद में ज़बान उर्दू मुअल्ला के नाम से भी जाना गया। यानी हिंदी, हिंदवी, रेख्ता के बाद कौन सी ज़बान, उसका नाम क्या रखा गया? ज़बान उर्दू मुअल्ला। फिर उसके बाद ज़बान उर्दू ये भी कहा गया, और आखिर में उर्दू के नाम से मौसूम किया गया। तो सबसे पहला नाम क्या था उर्दू का? हिंदी, हिंदवी, फिर रेख्ता, फिर ज़बान उर्दू मुअल्ला, फिर ज़बान उर्दू, आखिर में उर्दू के नाम से मौसूम किया गया। इसके बाद देखते हैं कि खड़ी बोली, अब यहाँ देख लेते हैं कि खड़ी बोली को हम देखेंगे कैसे कि खड़ी बोली में शामिल है ये। तो खड़ी बोली की औसाफ में से है कि मुशद्दद अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादा मिलता है उसमें। कौन सा तशदीद का इस्तेमाल वो अल्फाज में ज़्यादा करते हैं। जैसे रोटी है तो वहाँ पे ये लोग रट्टी कर देंगे, रोटी। गाड़ी है तो रा को भी चेंज करके डा में कर देते हैं, ये भी एक पहचान है, गड्डी कर देंगे, और इसमें तशदीद का भी इस्तेमाल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कदीम उर्दू यानी दक्कनी, उस लिहाज से दक्कनी बोली से करीब है। कदीम उर्दू जो है यानी जो खड़ी बोली के जो औसाफ में है वो सेम औसाफ दक्कन की उर्दू में भी है। दक्कन के लोग भी सेम, जैसे मैंने बताया ना ये गाड़ी और गड्डी, ये दक्कनी, अगर दक्कनी खुसूसियात को पूछा जाए तो दक्कन में भी यही इस्तेमाल करने का तरीक़ा है। और उसी तरीके से दक्कन के तरीके से खड़ी बोली में भी ये इस्तेमाल होता है। जैसे सोना से है, ये लिखा हुआ है सोना, उससे होगा सुन्नार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है इसके वाला पॉइंट व्यू, दक्कनी उर्दू की तरह खड़ी बोली की ये आम खुसूसियत है कि उसमें दरमियानी हा को क्या हाज़फ कर देते हैं, यहाँ तशदीद का इजाफा करते हैं, रा को डाल से बदल देते हैं या डाल में हा लगा देते हैं इस तरीके से, और इसके अलावा हा भी गिरा देते हैं, हज़फ कर देते हैं। उसकी असल आवाज़ वो गायब हो जाती है, यानी जो हा की जो असल आवाज़ है उसको वो गायब कर देते हैं। जैसे नहीं है तो नहीं, इस तरीके से बोलते हैं कि हा गायब होकर के हमज़ा दिखने लगे। कहाँ है, यहाँ पे हा है तो उसको बोलेंगे कहाँ। तो ये दक्कनी उर्दू की भी लिसानी खुसूसियात में से है, और कदीम उर्दू यानी खड़ी बोली की भी लिसानी खुसूसियात में से है। तशदीद का इस्तेमाल करना, हा को गिरा देना, और रा को डाल में इस्तेमाल करना। अब इसके बाद देखिए खड़ी बोली में साकिन को मुतहर्रिक करने का भी रिवाज है, यही दक्कन का भी है, यही सेम चीज़ दक्कन का भी है। दक्कन में भी जो लफ्ज़ साकिन है, जैसे अक्ल है, अक्ल है ना, ये दोनों साकिन है, लेकिन इसको फतह दे देंगे अकल, है ना। इस तरीके से शक्ल, तो ये अलग अलग नहीं लिख के बजाय ये ऊपर हरकत दे देते हैं कि
साकिन को मुतहरिक कर देते हैं, जो साकिन है उसको हरकत दे करके उसको मुतहरिक कर देंगे। ये भी रुझान अवामी उर्दू के ताहाल खुसूसियात है, और ये तो अभी तक है। ताहाल खुसूसियात का मतलब ये है कि ये अक्ल, जो लफ्ज़ अक्ल है, अक्ल, तो ये अभी तक अक्ल, बहुत सारे लोग इसको अक्ल ही बोलते हैं, अक्ल नहीं है तुमको, इस तरीके से। और आगे चलिए, तो आपको मालूम हो गया होगा कि हा का इस्तेमाल, हा को गिरा देते हैं, उसका इस्तेमाल बदल देते हैं। इसके अलावा साकिन को मुतहर्रिक करना भी इनकी खूबियों में शामिल है, दक्कन की भी और खड़ी बोली में भी। याद रखिए, खड़ी बोली में ने का इस्तेमाल भी करते हैं। क्या करते हैं? ने को बढ़ा देते हैं। जैसे बंदर ने उसको देखा, क्या है? बंदर ने उसको देखा। अब यहाँ पे उसको है, उसको देखा, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? बंदर ने उसने देखा। को की जगह में ने का इस्तेमाल भी ये लोग इजाफा करके करते हैं। इसके अलावा खड़ी बोली में ज़मीर जो है तेरा मेरा से मुझ तुझ का इस्तेमाल करते हैं। मुझसे है, मेरा से नहीं, मुझ से बोलेंगे, तुझ से इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसको याद रखिए कि खड़ी बोली की वस्फ में से ये भी है कि मैं मारता हूँ। जैसे एक लफ्ज़ है मैं मारता हूँ, तो मैं गाता हूँ, तो उसको वो लोग चेंज करके बोलते हैं मैं मारू हूँ, मैं वो मारे है, तू मारे है। इस तरीके से भी वो खड़ी बोली में इस्तेमाल होता है। तो ये पूरे औसाफ में से थे, खड़ी बोली के औसाफ में से आपको मैंने बताया। और खड़ी बोली कहाँ से जन्म ली, खड़ी बोली कौन से सन की है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इस नोट्स को आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद, क्योंकि इसी के हवाले से फिर आगे मॉक टेस्ट भी आएंगे, आपको मॉक टेस्ट भी देना है, जो इंशाल्लाह जल्दी ही, जब ये वाला चैप्टर हम लोग पूरा करेंगे, इसके बाद लिसानी जो खुसूसियात है उसके, और इसके बाद लिसानी खुसूसियात के बाद हम लोग अक़वाल पढ़ेंगे। जो मुहक़्क़िक़ीन के अक़वाल हैं, लिसानी अक़वाल, उनको जानेंगे। उसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक दे दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको जो भी कुछ इस प्लेटफॉर्म से आपको मिले वो आपको फ़ायदा पहुँचे।